ابلیس جو ہے ہمارے گھروں کے اندر باندھنے کا کام کرتا ہے. وہ ہمارے مالی حالات کو باندھتا ہے, وہ ہمارے جسمانی حالت کے اندر کام کرتا ہے اور ہماری خاندانی زندگی کے اندر ابتری کو باندھتا ہے. وہ ہماری برکت کو روک دیتا ہے. وہ ہماری زندگی کے اندر ایسے حالات کو پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کے اندر جو ہے شکستگی اور تکلیف اور کمزوری کو محسوس کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں ہر روز محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے باندھا ہوا ہے. ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے راستے بندھے ہوئے ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن جتنا ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے زیادہ ہم پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. کلام یہ کہتا ہے جو کچھ تم زمین کے اوپر باندھو گے آسمان پر باندھو گے. آج ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک بڑی خوبصورت باتوں کو سیکھنے والے ہیں. آئیں متی کی انجیل نکالیں, اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے میں خدا کے کلام میں سے تلاوت کروں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا, جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولے گا. اور پھر خداوند نے کہا, میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جیسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں, متفق ہوں, تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے اس کے لیے ہو جائے گا. ہاللیلویا. کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں. ہاللیلویا. میں ان کے یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ میرے خیال میں 50-60 لوگ ہیں. تو یہاں کتنے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ 2 یا 3 لوگ. دیٹ مینس کہ خدا کی حضوری یہاں موجود ہے, پاک روح یہاں موجود ہے, یسوع مسیح یہاں اترا ہوا ہے, خدا یہاں موجود ہے. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں, کلام جو ہے یہ باندھنے کے تعلق سے بیان کر رہا ہے, کھولنے کے تعلق سے بیان کرتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا باندھنا ہے کیا کھولنا ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی صاحب یہ باندھنا کیا ہے اور کھولنا کیا ہے. بائبل مقدس جو ہے یہ کچھ چیزوں کے تعلق سے کہہ رہی ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے. زمین پر تو ہم کیا گرا باندھتے ہیں, رسیاں باندھتے ہیں, گانڈ باندھتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں ہم. I don't know what is this. باندھنا جو ہے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے روحانی طور پر یہ بات کر رہے ہیں. یعنی خداوند یسوع مسیح زمینی بات نہیں کر رہے, یہ ایک روحانی عالم کے اندر روحانی جو ہے بات ہو رہی ہے کہ کوئی چیز بندھی ہوئی ہے. اور اکثر ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یار اینو کسی نے بنی ہے. ایسے ہی ہے. اگر کوئی ابلیسی اثر ہمارے گھروں میں ہو یا کوئی شخص بدرو گرفتہ ہے یا گھر کے اندر کوئی ایسی ہمیں ابلیسی محرکات نظر آتے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں ہمارا گھر بندھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس جو ہے ہمارے گھروں کے اندر باندھنے کا کام کرتا ہے. وہ ہمارے مالی حالات کو باندھتا ہے, وہ ہمارے جسمانی حالت کے اندر کام کرتا ہے اور ہماری خاندانی زندگی کے اندر ابتری کو باندھتا ہے. وہ ہماری برکت کو روک دیتا ہے. وہ ہماری زندگی کے اندر ایسے حالات کو پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کے اندر جو ہے شکستگی اور تکلیف اور کمزوری کو محسوس کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں ہر روز محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں
किसी ने बांधा हुआ है। ऐसा है? मुझे बताएं, हाथ हिलाकर बता सकते हैं भाई साहब वाकई आप सही कह रहे हैं कि कई दफा हम महसूस करते हैं कि हम बंधे हुए हैं। हम तरक्की करना चाहते हैं, हमारे रास्ते बंधे हुए हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जितना हम आगे बढ़ते हैं उससे ज्यादा हम पीछे धकेल दिए जाते हैं। हमें पता नहीं चलता हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। मेरे अजीजों, कलाम ये कहता है जो कुछ तुम जमीन के ऊपर बांधोगे आसमान पर बंधेगा। इसका मतलब है जमीन के ऊपर एक आलम है, आसमान के ऊपर एक आलम है। एक आलम ऐसा है जो जिस्मानी है, एक आलम ऐसा है जो रूहानी है। और इन दोनों आलमों के अंदर बहसियत इंसान हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। इट मीन्स के हमारी एक्सेस जो है, हमारी रसाई जो है दोनों आलमों के अंदर होती है। और इन दोनों आलमों के अंदर जो है रूहानी कुव्वतें काम कर रही हैं, जिसके ताल्लुक से खुदा के कलाम में इफिसियों के खत में लिखा कि वो शरारत की रूहानी कुव्वतें हैं। ऐसी कुव्वतें जो बदी की कुव्वतें हैं, जो हमें जो है कमजोर करने के लिए, बीमार करने के लिए, परेशान करने के लिए, बदहाल करने के लिए, मायूस करने के लिए खड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसी रूहानी कुव्वतें भी हैं जो हमें उठाने के लिए भी खड़ी हैं। ऐसी रूहानी कुव्वतें भी हैं जो हमारे साथ खड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि दो आलम है, एक रूहानी आलम है, एक जिस्मानी आलम है। और रूहानी आलम के अंदर भी दो बादशाहतें हमें नजर आती हैं। एक अबलीस की बादशाहत है, एक खुदा की बादशाहत है। अब ये दोनों बादशाहतें जो हैं आपस के अंदर इनकी जंग है और इंसान इनके अंदर दरमियान में है। इंसान जो है वो या तो खुदा की बादशाहत का चुनाव कर सकता है या अबलीस की बादशाहत में जा सकता है। अगर वो अबलीस की बादशाहत में जाता है तो अबलीस उसका मददगार है। अगर वो खुदा की बादशाहत का चुनाव करता है तो खुदा उसका मददगार है और अबलीस उसका मुखालिफ है। इसका मतलब है कि हमें एक रूहानी जंग का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा है? आप कहेंगे भाई साहब मैं तो कोई रूहानी जंग नहीं करता, मैं सुबह जाग उठता हूं, अपना काम करता हूं, घर में आके खाना खाता हूं, सो जाता हूं, मेरी तो कोई रूहानी जंग है ही नहीं है। मेरे अजीजों, रूहानी जंग के बगैर आप पैदा ही नहीं होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो ही इंसान इस दुनिया में आता है उसकी रूहानी जंग शुरू हो जाती है। जो ही वो जी शाऊर होता है, उसका शाऊर उसके जहन के अंदर आता है, उसकी अकल वो डेवलप होती है, वो अच्छाई और बुराई का इम्तियाज करना शुरू होता है, उसकी रूहानी जंग शुरू हो जाती है। वो बुराई की तरफ खींचा चला जाता है और उसका ज़मीर जो है उसको गवारा नहीं करता, उसका ज़मीर उसके साथ मैच नहीं खाता और एक रूहानी जंग शुरू हो जाती है। समझ रहे अजीजों, हमें अपने इख्तियार को समझने की जरूरत है। अगर हम खुदा की बादशाहत के अंदर हमने चुनाव किया है कि हम खुदा के साथ जिंदगी गुजारने का चुनाव करते हैं, इसका मतलब है कि आपने चीजों को बांधना है अपने अंदाज के अंदर। अब आप कैसे बांधेंगे? खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर कोई शख्स आजाद होना चाहता है तो पहले वो जोरावर को बांधे। जोरावर को जब आप बांधेंगे तो फिर आप उसका माल जो है वो ले सकते हैं, अपना माल भी ले सकते हैं। अबलीस जो है उसने हमें बांध रखा है, माली तौर पे मुश्किलात है, रूहानी मुश्किलात हैं, तरक्की नहीं हो रही है बच्चों के मामले में। इसका मतलब है कि हम किसी ना किसी तरह से बंधे हुए हैं। अब वो बंधन जो है वो टूटेगा कैसे? कौन सी ऐसी चीज है जिससे बंधन टूटेगा? सबसे पहले तो हमें अपने इख्तियार को समझने की जरूरत है। हमेशा याद रखें, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई शख्स जमीन पर, इसका मतलब है कि जमीन के ऊपर आप जो कुछ भी मांगते हैं वो आसमान के ऊपर उसकी क्रिएशन होती है। अगर आप शिफा मांग रहे हैं तो आसमान के अंदर उसका असर होना शुरू होता है। अगर आप कुछ भी मांग रहे हैं आसमान के अंदर कुछ ना कुछ हलचल होती है। इसका मतलब यह है कि बुनियादी चीजें असल में जमीन पर नहीं है बल्कि आसमान पर है। हालेलुया।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقی چیزیں جن کا جو سورس ہے، جو ماخذ ہے، جو اوریجن ہے، وہ اصل میں زمین نہیں ہے بلکہ آسمان ہے. اصل اگر آسمان میں سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو زمین پر بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. ہاللویہ، 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 ہاللویہ. تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں بنسبت اپنی زمینی حالت درست کرنے کے لیے ہمیں زمینی چیزوں کا استعمال کریں بلکہ ہمیں آسمانی چیزوں کا استعمال کرنا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی صاحب آسمانی چیزیں کون سی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح اصل میں ایک ایسی بادشاہت کا کانسیپٹ لے کر آئے تھے جس کو نہ تو رومی سمجھ سکے، نہ فقیر اور فریسی سمجھ سکے، نہ ہی یہودی سمجھ سکے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم تو ایک بادشاہ کی توقع کر رہے ہیں، تو ایک ایسے بادشاہ کی بات کر رہا ہے، کوئی جو مطلب عجیب بادشاہ ہے، وہ مار بھی کھا رہا ہے، وہ صلیب بھی چڑھ رہا ہے، وہ کوڑے بھی کھا رہا ہے، تو بھی وہ کہہ رہا ہے میں بادشاہ ہوں. وہ کون سی بادشاہت کی بات کر رہا ہے؟ اب زمین کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ زمینی چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن آسمانی چیزیں جو ہیں وہ زمینی چیزوں سے بہت زیادہ ڈائنامک ہیں، بڑی ہیں، قوت سے بھری ہوئی ہیں. اب خداوند یسوع مسیح آپ کو ایک ایسا اختیار دے رہا ہے جو اختیار آپ کو نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ آسمان کے اوپر بھی عجیب طور سے آپ کو ڈائنامک پرسنالٹی بنا رہا ہے، ایک ایسی شخصیت بنا رہا ہے جو منہ سے لفظ نکالے آسمان کے اوپر کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جائے. آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کلام میں پڑھ کے دیکھیں، آپ نبیوں کو پڑھیں، علیشا کو دیکھیں، ایلیا کو دیکھیں، موسیٰ کو دیکھیں، ابراہم کو دیکھیں، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو دیکھیں. جو ہی منہ سے الفاظ نکلے آسمان پر ہلچل ہونا شروع ہو. ایسا ہے. ایلیا نے کہا بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوئی. 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی. پھر ایلیا نے کہا کہ اب میں خدا سے منت کرتا ہوں کہ بارش ہو. دعا کی، 7 بار خدا کے پاس گیا، 7 دفعہ دعا کرنے کے بعد آخر بادشاہ کو کہا جا بھاگ جا، بارش آنے والی ہے. منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں پر دیکھیں. جو ہی زمین کے اوپر آپ ایک ایسی شخصیت بن جاتے ہیں جو ایماندار شخص ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آسمان کو ہلا دیتے ہیں، آسمان کو ہلا دیتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا کہ اگر تو ایمان سے اس پہاڑ سے کہہ دے، وہ کہہ دے، کچھ نہ کر، کہہ دے، آسمان چہل چل ہونا شروع ہو جائے. That means ایمان سے کہہ دے تو یہ پہاڑ جو ہے یہ بھی ٹل جائے گا. ہاللیلویہ. جو کچھ تم زمین پر باندھو گے، باندھنا یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے رسی دے کے تو اس کی گرہ باندھنا شروع کر دیں، یہ نہیں. That means کہ آپ نے دعا میں کھڑے ہونا ہے. آپ نے اپنی روحانی حالت کو درست کرنے کے لیے ابلیس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. آسمان پر ہلچل ہونا شروع ہو جائے گی. میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ اس کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ اصل میں حقیقت ہے. خدا یسوع مسیح نے بارہا کہا کہ خدا کی بادشاہت ایک رائی کے دانے کی مانند ہے. ایک رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ چھوٹا سا. اور یہ ہمارے ایمان کو ثابت کرتا ہے. ہمیں بہت بڑا ایمان نہیں چاہیے ہے. ایک سمپل faith can do a lot of things. A simple faith, ایک عام سادہ ایمان کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یہ بہت ہے. خدا یسوع نے کہا ایک رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر ایمان جو ہے وہ بھی پہاڑوں کو ہٹا دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایک اختیار موجود ہے، ہمارے پاس ایک ایسی اتھارٹی ہے، ایک ایسی پاور ہے جس کے ذریعے ہم آسمان کی قوتوں کو ہلا سکتے ہیں. ہم خدا کے نام کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم یسوع کے نام کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس روحانی
इख्तियार मौजूद है। अब आप कहेंगे भाई साहब वो इख्तियार कैसे मिलेगा? आप जरा गौर करें, जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द वो छुप कर बैठे थे, रोमियों से डर के, यहूदियों से डर के, वो डरे हुए थे क्योंकि उनको पता था जैसे हमारे उस्ताद को, रबी को इन्होंने कत्ल किया है, वैसे वो हमें भी मार देंगे, हमें भी मार देंगे। लेकिन मेरे अजीजों देखें, अब वो उसी वादे को जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे किया था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और दूसरा मददगार दूंगा, अब उस मददगार का इंतजार कर रही है। दैट मीन्स के आपको दुनियावी आलम में रहते हुए रूहानी आलम को एक्सेस करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत है, एक नेटवर्क की जरूरत है। एक ऐसा जरिया आपको चाहिए जिससे आपकी आवाज जो है वो रूहानी आलम में सुनी जाए। वो कैसे सुनी जाएगी? अगर आपके फोन के अंदर सिग्नल ना आ रहे हो तो मुझे बताएं, बात हो सकती है? तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सिग्नल आ ही नहीं रहे, गल नहीं हो सकती, आपका राबता मुमकिन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नेटवर्क। तो इसका मतलब यह है कि रूहुल कुदस का आना जो है ये इंसान के लिए एक नेटवर्क प्रोवाइड करना था, ताकि इंसान जो कुछ जमीन पर बांधता है वो आसमान पर बंधे। सो मेरे अजीजों, रूहुल कुदस एक ऐसी हस्ती है जो आपका मिलाप कराती है खुदा के साथ। रूहुल कुदस एक ऐसी हस्ती है जो आपकी बात जो है खुदा तक पहुंचाती है। रूहुल कुदस एक ऐसी हस्ती है, जब आप दुआ करते हैं तो आपकी आवाज खुदा सुनता है। रूहुल कुदस एक ऐसा नेटवर्क है, जब वो आपके अंदर से डेवलप होता है तो आपकी आवाज रूहानी आलम के अंदर पहुंच जाती है और रूहानी सारी कुव्वतें एक्टिवेट हो जाती है। और कितनी कुव्वतें एक्टिवेट हो रही है? 5 बड़ी कुव्वतें एक्टिवेट हो जाती है। खुदा बाप एक्टिवेट हो जाता है आपके लिए, खुदा बेटा, खुदावंद यीशु मसीह एक्टिवेट हो जाता है आपके लिए, रूहुल कुदस एक्टिवेट हो जाता है आपके लिए। खुदा के सब भलाई की कुव्वतें जिनमें खुदा के फरिश्ते शामिल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं आपके लिए, और तमाम ईमानदार आपके साथ मिलकर एक्टिवेट हो जाते हैं। बड़ी 5 कुव्वतें आपके उस नेटवर्क से आपके लिए एक बहाली की पैदावार पैदा करते हैं। You see that how we can do that? तो ये रूहानी आलम के अंदर बांधने का सबसे बड़ा फार्मूला यह है कि हमें अपनी रूहानी इख्तियार को समझना है, हमें अपने रूहानी इख्तियार को समझना है। अल्लाह के कलाम में मत्ती 16:19 के अंदर लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, जो तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर। हालेलुया। ते ताड़े कोल ते चाबियां मौजूद ने, चाबियां तानू होन ऐ नहीं पता कि किथे रखियां चाबियां। कई दफा चाबियां गुम हो जाती हैं तो हम सारा घर ढूंढ मारते हैं, साड़ियां चाबियां गुम हो गई हैं। कई दफा हम भी रूहानी चाबियां खो देते हैं अपनी, सानू पता ही नहीं चाबियां साड़ियां किथे ने। जो चाबी ना होए तो ताला नहीं खुलना, तो चाबी का होना जरूरी है। आपके पास आसमान की चाबी मौजूद है। हालेलुया। आसमान की, इसका मतलब यह है जहां से बरकत को मिलना है, जहां से बरकत जारी होना है, जहां से बरकत को रिसीव करना है, उसकी चाबियां तो ऑलरेडी आपके पास ही है, वो तो आपके पास मौजूद है। इट मींस कि जो कुछ आपने जमीन पर बांधना है वही आसमान पर बंधना है, जो कुछ आपने खोलना है वही चीजें आनी है। अगर आप बरकत मांग रहे हैं, बरकत ही आनी है। लानत को आपने बांधना है, वो बंधेगी। बदी को बांधे, नफरत, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतों को बांधे, लानतों को बांधे, खलाजत को, शराबनोशी को, हर तरह के नशे को बांधे। यू हैव अ कीज, आपके पास इख्तियार मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते खुदावन तू कर रहे हैं, नहीं, खुदावन कुछ नहीं कर रहा। खुदावन ने तो आपको ऑलरेडी चाबियां दे रखी है।
खुदावन ने तो आपको दे दिया है। सो मेरे अजीजों, एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट। यू नीड वन मोर पर्सन। हो सकता है आपको एक और शख्स की जरूरत है दुआ के लिए, एक शख्स काफी नहीं है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर आप मियां बीवी हैं, इकट्ठे दुआ नहीं कर पाते, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले हैं। कलाम कहता है 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 लोग, अगर तुम में से 2 शख्स का होना जरूरी है। इख्तियार को समझे। खुदा यीशु मसीह ने कहा ईमानदारों में ऐसे मौजज़ात होंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, वो कोई चीज पिएंगे, उन पर कोई असर नहीं होगा, वो बदरूहों को निकालेंगे, वो तरह तरह की मौजज़ात करेंगे। आप सब ईमानदार हैं, यू ऑल आर बिलीवर्स। आप सब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। खड़े हो, राइज अप, खड़े हो अपने ईमान के ऊपर, अपने ईमान पर खड़े हो, अपने ईमान को देखें। क्या मैं अपने ईमान पर खड़ा हूं? दुआ आपकी बहुत बड़ी कुव्वत है। जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, आपने दुआ में ही मांगना है। और दुआ के बहुत सारे तरीके हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तू दुआ करे अपनी कोठड़ी में जा, क्या कर? असी खुले दरवाजे की दुआ करी जा रही, दरवाजा बंद कर, शट द डोर। दैट मीन्स कि अपनी फिक्रें, अपनी सोचें, अपना ध्यान मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी पे ला। दरवाजा बंद कर, अपने दिमाग दा दरवाजा दुनिया वालों पासों बंद कर दे ते अपना ध्यान खुदा वाला ध्यान मेडिटेट कर। जब तू दुआ करे अपनी कोठड़ी में जा, अलहदा हो, सेपरेट हो और पोशीदगी में दुआ कर। और खुदा जो पोशीदगी में है वो तेरी दुआ को सुनेगा। He will listen you, He will hear you। तो मेरे अजीजों, दुआ के अंदर बहुत बड़ी कुव्वत मौजूद है। जब आप एग्री करते हैं दुआ में, जब आप किसी काम के लिए इकट्ठे होकर दुआ करना शुरू करते हैं, तो फिर आपके लिए वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं, वो मुमकिन हो जाता है। सो व्हेनेवर यू प्रे, अकेले में भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी खानदानी दुआ करना मत भूला करें। जब भी आप दुआ करते हैं, अपनी खानदानी दुआ जरूर किया करें मेरे अजीजों, क्योंकि जब आप एग्री करते हैं प्रेयर के अंदर, खुदा उसी वक्त काम करता है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, क्या होगा? तो मैं तुम्हें दूंगा। सो वी हैव टू सी दैट कि हमें कौन सी चीजों को बांधना है। हम सिर्फ बांधते हैं, खोलते नहीं हैं। अगर हम इब्लीस को बांधते हैं, हम बदी को बांध रहे हैं, हम मोहब्बत को खोलते हैं। हमें मोहब्बत को खोलना है, हमें बरकत को खोलना है, हमें अपनी शिफा को खोलना है, हमें अपने उन तमाम बरकतों को खोलना है। हमें कुछ चीजें लेनी है, कुछ चीजें रखनी है। आपके पास चाबियां हैं, कुछ चीजें आपने लेनी है, कुछ चीजें वहां पे रखनी है, और फिर उसको लॉक लगा देना है। हम सिर्फ वहां से चीजें उठाते हैं, रखते नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसा है? कुछ चीजें हमने वापस रखनी है। आपके पास आसमान की चाबियां मौजूद हैं, तो आपने अपने नफरत को वापस उसके अंदर रखना है, गुस्से को रखना है, बदी को रखना है, अपनी लानतों को रखना है, अपनी तमाम तर कमजोरियों को वापस रखना है। और वहां से क्या लेना है? अपनी शिफा को लेना है, अपनी बरकत को लेना है, अपनी बहाली को लेना है, अपने अच्छे रोजगार को वहां से पकड़ना है, अपनी अच्छी अच्छी चीजों को वहां से पकड़ना है। उस तो बाद उन्होंने लॉक ला देने हैं। लॉक लाना बड़ा जरूरी है। यू हैव द कीज। आपके पास चाबियां हैं, आपके पास कुव्वत है, आपके पास इख्तियार है। आप देखिए, एक पुलिस वार्डन जो है वो सड़क के ऊपर खड़ा हुआ, हाथ हिलाकर
500,000 गाड़ी को रोक देता है। मेरे दोस्तों, एक छोटा जिहा कमजोर हाथ क्या ट्रक को रोक सकता है? अगर वो रोकना चाहे तो ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाएगा। क्यों? उसके एक हाथ के इशारे पर बड़ी बड़ी भारी गाड़ियां भी रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि वो देखो इख्तियार है, उन्हें वर्दी पाई है। दूर से ट्रक ड्राइवर कहता वो पुलिस वाला खलोता है, भाई मैं आगे नहीं जा सकता। उन्हें को इशारा करना, बस इशारा हो गया है। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अगर कोई उसका मुकाबला करने के लिए कोई खड़ा भी हो जाता है फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ कोई मस्ती करे उन्हें शूट कर दे, ऐ भी तेरे को इख्तियार है, उन्हें शूट कर दे, उन्हें मार दे, क्योंकि वो कानून की पासदारी नहीं कर रहा। सो यू आर लाइक अ वार्डन्स, आप उन वार्डन्स की तरह है, पुलिस है आप। आपके पास खुदा ने एक ऐसा इख्तियार दिया है, जब आप हाथ खड़ा करते हैं ना दुआ में तो पुलिस की वड्डियां वड्डियां फौजा रुक जाती है। हालेलुया। वड्डियां वड्डियां फौजा दूरों देख के डर जाती है, ओ हाथ खलो गया जोदा, बस ऐसे तो अगे नहीं जा सकते। उसको पता है, अब पुलिस को पता है, जो ही इसने हाथ खड़ा कर दिया साडा दाखला बंद हो जाना है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ, और ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਈ ਰੱਖਣਾ। एक ईमानदार को सुलाए रखना उसका काम है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਆਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आओ सारे मिल के दुआ करिए। अज मेरा दिल बड़ा करता जे पिया दुआ ते पिछले 6 महीनों तो तेरा दिल नहीं सी करता, अज क्यों याद आई? क्योंकि उत्तों डंडा पिया है। आज हुण दुआ करिए यार, इस तो पहले कि डंडियां की बारिश शुरू हो जाए। सानू समझ ही उदों आती है जो डंडे उत्तों शुरू हो जाते हैं, जो साडा नक भी डुब जाता है, सिर भी डुब जाता है ते पानी उत्ते उत्ते आ जाता है। फिर असीं कहने ओ बचा लै खुदा बंदा, रहम कर साडे ते पैर भी नहीं लगते पे हुण। फिर सानू दुआवां भी याद आंदियां, वड्डे वड्डे पादरी भी याद आते हैं, मैसेज भी याद आते, फिर सानू मोबाइल भी याद आ जाते हैं, फड़ो भाई साहब का नंबर कॉल करो, भाई साहब दुआ करो। इस टाइम बड़ी तकलीफ च क्यों? क्यों? क्योंकि तुसीं चाबियां भी सुट छड़ियां दरिया च, लभन ही ना है। ना दुआ याद है, ना कलाम याद है, ना खुदा याद है, ना परस्तिश याद है, ना चर्च याद है, ना रफाकत याद है, ना कभी खुदा दी हजूरी याद है। बस सानू याद है तो पैसा कमाना याद है, सानू याद है तो बस दुनियादारी याद है, दोस्ती यारी अजीज रिश्तेदारी। वो मर गया भाई सब उत्थे मरग हो गई। मैं संडे वाले दिन पिछले संडे और भाई सब मेरी भैन उत्थे फलाया हो गया सी, साडा कीका सी, साडी शादी सी, साडी मरगां सन ते साडियां मरगां खत्म ही नहीं होंदियां। साल लंघ जाता है, चर्च कोई भी नहीं आता। मेरे अजीजों, ऐसे आप बांध नहीं सकेंगे, ना ही खोल सकेंगे, ना ही बरकत आनी है घरों के अंदर, ना ही गुर्बत की लानत से आपने निकलना है। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपनी औलाद को भी खराब करेंगे, क्योंकि आपने वो काम किया ही नहीं है जो आपको खुदा के खादम सदियों से कह रहे हैं करने के लिए। अपने आप को पहचाने, आप कमजोर नहीं हैं, आप उड़ने वाले परिंदे हैं। हालेलुया। आप उकाब है ते इबलीस तानू कहंदा नहीं तू छोटी जी चिड़ी है, क्योंकि वो तानू चिड़ियां दे विच रखदा बस। क्या जी तुसी चिड़ियां च रह के चिड़ी बन गए जे, तानू पता नहीं तुसी उकाब। और इबलीस हमेशा कहते हैं नहीं तू उड़ नहीं सकता, और फिर हम भी अपने ज़हनी तौर पर उसको कबूल कर लेते हैं, नहीं असी छोटे जे कमजोर जे भाई सब गरीब जे, और साढ़े मुंह जो गुर्बत की लानत निकलती नहीं है, क्योंकि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमारे पास इख्तियार भी है, हमारे पास रूहानी कुव्वत भी है। मेरे अजीजों, क्या आपने कभी अपनी दुआ की कुव्वत को महसूस किया है? गौर करें।
गौर करें, क्या आपने कभी दुआ की कुव्वत को महसूस किया है? क्या आपका कोई जाती तजर्बा है? आप किस तरह अपनी बरादरी में, अपने खानदान में रूहानी इत्तेहाद को पैदा कर सकते हैं? कैसे आप इकट्ठे होकर दुआ कर सकते हैं? कैसे आप रूहानी तौर पर चीजों को बांध सकते हैं और खोल सकते हैं? यह आज का मैसेज है। क्या आप समझते हैं कि आपकी दुआ से आसमान खुल सकता है? क्या आप समझते हैं? वो खोल सकते हैं, आपकी दुआ से भी खुल सकता है, क्योंकि आपको खुदावंद ने अपना नाम दिया हुआ है। जो कोई मेरे नाम से, अथेया नहीं लिखा सिर्फ पादरी, मुबशर, डीकन, एल्डर, बिशप और ही दुआ करे तो फिर ही आसमान खुलना है। और तुसी भी दुआ करोगे तो कुछ भी हो सकता है। अपनी पहचान खोलें, देखें हमने कौन सी चीजों को बांधना है, कौन सी चीजों को खोलना है। इब्लीस आपके लिए हर रोज मुश्किल को पैदा कर रहा है। वो चाहता है कि आप सोए रहे, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद आपको बढ़ाना चाहते हैं। आए हम सब खड़े हों।